Tirich Mir is more than just a mountain. It is memory, myth, and mystery. Tales of cursed expeditions and spiritual encounters linger like mist on its sheer slopes, where fairies reside and the jinns reign supreme. The people of Chitral speak of Tirich Mir with awe. Some say it is cursed, others that it is alive. मेरे दादा और हमारे बुज़ुर्गों से हमें मालूम है कि वो बताते थे कि तिरिच मीर का असल चोटी जो है उस पे कोई भी नहीं चढ़ सका है अभी तक। उसके पीछे जो रास्ता आता है उसमें 3 चोटियाँ आते हैं छोटे छोटे, वो उनको सर करते हैं और वो बड़े चोटी के साथ तस्वीर निकालते हैं। वो उसके जड़ तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। Since the first recorded ascent in 1950, the summit has been conquered mostly by foreigners. Its summit was first reached not by the locals, but by a team from distant Norway. In 1950, a team of Norwegian climbers made the first ascent of Tirich Mir and carved their names into history, while the sons and daughters of this land watched from below. And now, an all-Pakistani expedition attempts Tirich Mir. These young men have a dream: to summit and carry the Pakistani flag to the summit of Tirich Mir for the very first time. मेरा नाम सरबाज़ ख़ान है। मैं एक पाकिस्तानी कोहपेमा हूँ। मेरा ताल्लुक़ हुंज़ा अलीबाद से है। मैं पिछले कोई 8-9 साल से क्लाइंबिंग के शोबे में हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला पाकिस्तानी हूँ उसने दुनिया के 14 पीक्स विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन की है। और अभी मेरा एक नया प्रोजेक्ट है मिशन 3 समिट्स, जो कि 3 रेंजेस हिमालय, कराकोरम और हिंदू कुश की मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। नेपाल में जो कि हिमालयन रेंज है एवरेस्ट, और पाकिस्तान में कराकोरम में K2, और मेरा रहता है तिरिच मीर जो कि हिंदू कुश की हाईएस्ट पीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके ऊपर हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। I'm working as a director, Culture and Tourism Authority, Khyber Pakhtunkhwa, and we are here celebrating the year of Tirich Mir 2025 by having an expedition by climbing this mountain. I've had a bit of experience with the trekking and mountaineering. I've always been fascinated with it, and when gotten an opportunity to celebrate this year, so it was my personal mission, my personal dream to conquer this mountain once and for all. My name is Muhammad Atif Khan. I belong to a small district called Tandolayar. It's nearby to Hyderabad. पहले ट्रैकिंग्स करता था, बैकपैकिंग काफ़ी की। Then after that in 2014 I got training at Hopper Glacier for climbing. Last year I was at K2, where I went to Camp 1. And now for my climbing ambition or maybe whatever, I am at Tirich Mir. मेरा नाम नवीद है। बाय प्रोफेशन मैं डेंटिस्ट हूँ और मेरा ताल्लुक ज़िला स्वाबी के गांव कोंडा से है। शुरू ही से मुझे हाइकिंग का शौक़ था, फिर बीच में मुझे रॉक क्लाइंबिंग का शौक़ हुआ। फिर उसके बाद जॉइंट एक्सपीडिशन थी पाक चाइना स्पांटिक की, उसकी हमारी सक्सेसफुल समिट थी। फिर 2013 में मुस्तगाता जो चाइना में हमने क्लाइंब की, उसकी भी सक्सेसफुल समिट थी। और ये बस इस तरह ये सफ़र जारी रहा। My name is Abid Beg and I belong to Hunza Valley, Gilgit-Baltistan. Before joining the activity of climbing, I used to be a cyclist, and for the last 2 years busy in climbing activities. This year I was climbing Gesherbrum 1 and 2 before coming here, and then when I just got home I came to know about this expedition, this Tirich Mir expedition. So then I just straight away came here and joined the team in the base camp. मेरा नाम वजाहत मलिक है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ और केपी टूरिज्म का ये जो एक्सपीडिशन है तिरिच मीर एक्सपीडिशन 2025, आई वाज हायर्ड एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। तो मैं इस एक्सपीडिशन को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। इस वक्त हम तिरिच मीर के कैंप 1 पे हैं। मेरा नाम अकमल नवीद है। मेरा ताल्लुक़ चित्राल से और मैं बस पार्ट टाइम माउंटेनर हूँ। मुझे भी पहाड़ के ऊपर पहुँच के ना नीचे देखते हुए मज़ा आता है। वही थ्रिल है, वही 5-10 मिनट की जो सुकून है। और दूसरा ये कि मैं क्लाइंब इस वजह से करता हूँ क्योंकि मेरी अकड़ ख़त्म हो जाती है।
Nestled in the far reaches of northwestern Pakistan, Chitral Valley lies beneath the mighty peaks of Hindu Kush, a land where lofty mountains meet and cultures converge. Chitral town is a gateway to the breathtaking valleys and centuries-old traditions, drawing tourists and climbers from all around the world. In the heart of it all, Chitral town pulses with life, its bustling bazaars echoing with the sounds of trade and rhythm of daily life. And now let us open the mysterious door and peek into the mythical lives of Kalasha people. One of the last surviving communities of Hindu Kush. Living in remote valleys, these indigenous people have a vibrant culture and animist beliefs that set them apart. Believed to be the descendants of ancient Indo-European tribes, the Kalasha celebrate life through colorful rituals, music, and dance, seen most vividly during their seasonal festivals. The expedition members arrive in Chitral, the main staging post for all climbing ventures bound for Tirich Mir. Here they organize their gear and finalize their logistics. After meeting their high-altitude guides and packing up for the journey ahead, they set off for Shagrom, the last village at the far end of remote Tirich Valley. The 4 high-altitude guides accompanying the expedition are Jumar, Isaacs, Panda. The 8-hour jeep ride to Shagrom is perilous and breathtaking, a rugged journey through winding mountain roads and dramatic landscapes. By morning, Shagrom village came alive as over 100 unruly porters gathered to ferry the expedition supplies to the base camp. Amid the chaos, Sahib Alam, the base camp manager, faced the daunting task of bringing order, organizing the loads, lecturing the porters, and carefully assigning each porter their share for the 3 days trek ahead.
Beyond the last village, the world changes. The paths narrow, the wind sharpens, and the silence becomes holy. The sights and sounds of Tirich Valley unravel a new vista for the climbers. Taking advantage of some good granite boulders lying about, Dr. Naveed, an excellent rock climber, felt compelled to climb and tackled a difficult route on a nearby wall. Holding their breaths, the porters watched the doctor climb with awe. And then, one of the daring porters who felt challenged couldn't hold himself back and climbed the same route with bare feet. Yes. Yeah. Well done. In the evening, while the expedition members gathered in their mess tent for dinner, the porters huddled around in groups. Sheltered by low stone walls, they cooked their meager dinners of chapati roti and chai over wood fires. क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, हम अभी जा रहे हैं कैंप 1 से कैंप 2 की तरफ। ना करना गप्पू उस्ताद। हम 3700 पे पहुंच चुके हैं, 309 आज हमने असेंड किया है, 3 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी हम ग्लेशियर पे वॉक करेंगे, 2 घंटे ग्लेशियर पे वॉक है, फिर हमारी नेक्स्ट कैंप साइट होगी। अभी हम हमारे 2 फोटोग्राफर्स भाई का वेट कर रहे हैं, कोई आए ताकि कोई हम अच्छी सी तस्वीरें बनवा सके। Step by step, they climbed into thinner air and deeper silence. Moving along, harboring apprehension and excitement, they moved towards their goal and finally reached the base camp after 2 days. They have arrived, and they can partially see the mountain they are here to climb. The mountain does not speak, but it watches. It watches them with silence. The base camp, established at an altitude of 4,600 meters, sat at the junction of magnificent peaks rising in every direction. Towering above them all was Tirich Mir, revealing only the upper reaches of its snow-clad face. From the base camp, you could see Asternal, Kulum Zoom, and Nushak peaks, each formidable and each breathtaking in its own right. After a much-needed rest at the base camp, and after sorting out their high-altitude gear, the team set off up the mountain to establish Camp 1 and to begin acclimatizing to the high altitude.
The ascent up the Tirich Glacier was easy and gradual, but the climb up to Camp 1 under the intense sun was long and exhausting. यहाँ 3 टेंट है पास टेंट है आपके पास? नहीं, मेरे पास रस्सी है। रस्सी है ना, ठीक। मेरे पास टेंट है ना। उसके पास क्या है? वो लड़के के पास ऑक्सीजन है मेरे ख्याल। ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन मेरे पास है, फूड मेरे पास। सरबाज, अभी हम ABC पे हैं, कैंप 1 किधर लगाना है? ABC जो कि इसकी एलिवेशन है 5140, हमने अभी यहाँ से जाना है यहाँ ट्रेवल्स लेके, उसके पीछे कोई हम जाएंगे 5350 तक एलिवेशन पे हम कैंप 1 लगाएंगे इंशाल्लाह। जर्नी इज़ टफ बिकॉज इस माउंटेन पे डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो जब सनशाइन में आप इतने ज़्यादा ट्रैवल करते हैं आपको डिहाइड्रेशन भी होती है, सन भी तंग करता है, देन क्रेविसेस बहुत ज़्यादा है, तो क्रेविसेस की वजह से आपको जिगजैग करना पड़ता है। बट लकीली वी आर लकी कि फ्रेश स्नोफॉल नहीं है, जिसकी वजह से वी कैन एक्चुअली सी दी क्रेविस और हम उसे ट्रेवर्स कर सकते हैं। अगर फ्रेश स्नोफॉल होती है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लुक एट दीज क्रेविसेस and you can actually have a fall in that, which is, you know, always a disaster in the mountain. Camp 1. इस तरफ देखें, look at these crevices, crazy stuff. Okay. Umar, easy. Keep your balance. Keep your balance. और ये वो जा रही आगे तक, और इसके बिल्कुल ऊपर हमारा कैंप। आतिफ, तू पावर बैंक लाए अपना? हेलो हेलो, वेलकम टू कैंप 1। जाद भाई, क्या हाल है? हाल ये है कि मैं तो सोता हूँ लेकिन एकदम उठ जाता हूँ। मुझे इसलिए पता है कि रात को फिर मैं सो नहीं सकूँगा, तो मैं बस डोज ऑफ ही कर रहा था। अभी सूप आया, शुक्र है। बाकी आई एम फीलिंग ग्रेट, थैंक यू। कैसे हैं? रेडी है। After establishing Camp 2 and spending the night at an altitude of 6,000 meters, the climbers descended back to the base camp to rest and recuperate before making their summit push. अभी तक का जो हमारा हमने जो काम किया प्रोग्रेस है, वो हमने कैंप 3 तक, जो कि 6,600 मीटर पे हमने कैंप 3 लगाया है, और हमारा जो मेंबर्स है वो भी कैंप 2 और कैंप 3 के बीच तक उन्होंने अपना रोटेशन मुकम्मल की है। अभी जो हमारा समिट प्लान होगा तिरचमीर के लिए, वो हम वेट कर रहे हैं वेदर फोरकास्ट का, जो भी दिन 18, 19, 20 का अभी तक मैं सोच रहा हूँ, अगले हफ्ते यानी। तो हम देखते हैं कि किस दिन हमें सबसे लो विंड्स मिलते हैं और क्लियर वेदर मिलता है।
एक्लेमेटाइजेशन राउंड के बाद हम बेस कैंप आए और फिर हमने ये 2 दिन रेस्ट किया। आज 3rd डे, कल इंशाल्लाह हम समिट पुश पे जाएंगे। आज हमारी अर्ली मॉर्निंग मीटिंग हुई सब क्लाइंबिंग मेंबर्स और हाई एल्टीट्यूड गाइड्स की और ग्रुप लीडर की, तो बस प्लान डिस्कस हो गया और मोराल सबका हाई है। प्लान ये है कि कल हम लोग कैंप 1 में स्टे करेंगे, नेक्स्ट डे कैंप 2, कुछ हाई एल्टीट्यूड गाइड्स कल हमारे साथ आएंगे, उसके बाद सरबाज एंड टीम डायरेक्टली कैंप 2 पे हमें ज्वाइन करेगी। देन वी विल गो टू कैंप 3 6600 मीटर्स। उसके बाद क्योंकि कोलिवार स्टार्ट हो जाता है, लिटिल बिट रो फिक्सिंग की रिक्वायरमेंट है, अभी तक हमने कहीं रो फिक्स नहीं की। वी आर वेरी होपफुल फॉर दिस। डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, इस वक्त हम मौजूद है 6270 मीटर पे तिरछमीर, अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। 17 अगस्त को हम कैंप 2 पहुँचे फॉर द समिट पुश आफ्टर द रोटेशन। वी वर लो ऑन द एनर्जी लिटिल बिट क्योंकि हम रोटेशन से थोड़े थक चुके थे। जब मैं कैंप 2 पहुँचा तो थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी। कैंप 2 में जब हम पहुंचे तो रात को मौसम ख़राब रहा, हवाएं बहुत तेज़ थी। सुबह भी जब हमने जल्दी निकलना था, लेकिन हमने जब ग्रुप लीडर से राब्ता किया तो उन्होंने कहा हम अभी कैंप 3 से नहीं निकले, आप भी स्टैंड बाय में रहें। कैंप 2 से फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सरबाज भाई कैंप 3 पहुंच चुके थे बिकॉज वो बेस कैंप से डायरेक्ट कैंप 2 आए थे। बहुत ज़्यादा विंड थी। हम लोग सुबह 8 बजे उठे, सरबाज भाई ने हमें 2-3 कॉल की कि आप कैंप 3 पहुँचें ताकि समिट पुश से रिलैक्स हों, बट विंड बहुत ज़्यादा थी और स्नोफॉल भी हो रही थी हल्की हल्की। 10 बजे कुछ विंड काफ़ी कम हुई, स्नोफॉल भी थोड़ी रुकी, सो वी स्टार्टेड आवर मूव टिल कैंप 3। कैंप 2 के बाद फ़ौरन ऑलमोस्ट 100 मीटर का असेंड है। वो असेंड चढ़ने के बाद एक स्ट्रेट ग्राउंड आता है जो आपका इंड्योरेंस चेक करता है, उसमें आप हाइट गेन नहीं करते, पर थोड़ा बहुत आप फ्रस्ट्रेट होते हैं कि आप 2 घंटे से एक वो ओपन सा ग्राउंड है, क्रेविसेस क्रॉस करके आप चल रहे हैं। उसके बाद विंड और हल्की स्नोफॉल वापस स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से हम लोगों ने रेस्ट भी बहुत कम किया बिकॉज ऑफ स्नोफॉल में आप बैठते हैं तो यू आर गेटिंग कोल्ड। आफ्टर दैट ऑलमोस्ट वी टुक 6 hours अराउंड टू कैंप 3। Fixing ropes on the Shamir, Jumar, ISX, Panda, कैंप 3 6900। बाकी जो टीम है वो कैंप 3 की तरफ आज ये कैंप 2 से रवाना है और होपफुली आज वो पहुंच जाएंगे। हम पहुंच गए इधर तकरीबन 6800 पे। तो प्लान है हमारा 7200-300 तक जाने का। मौसम ने साथ दिया तो जिस तरह के क्लाउड्स का मोमेंट है, हमें नहीं लग रहा कि हम पहुंच जाएंगे, बट उम्मीद, आई एम प्रेइंग कि मौसम हमारा साथ दे ताकि हम जल्दी से ज़्यादा काम कर सकें। बिकॉज टुमारो वी हैव समिट पुश, सो वी वुड लाइक टू हैव like more work done on the mountain before the summit push. उससे डर गया मैं बहुत ज़्यादा। किससे? वो नी में पहनता इधर इस साइड। हाँ तो लेकिन मैं चलो फिर जाओगे। कैंप 3 में रात को भी काफ़ी विंड थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी एंड कैंप 3 में हमने नाइट स्पेंड की। 2 बजे का सरबाज भाई ने निकलने का प्रोग्राम बनाया and we were ready almost till 2. The same day we went from Camp 2 to Camp 3. We hardly reached there by like 5 or 6 o'clock. We were tired, we were exhausted, we were given a soup
and I had no idea. I just slept after that, and at around 8 o'clock, 8 or 9 o'clock, I got up. I thought we would have some kind of a meal, dinner or something, but we didn't get anything. So that was like putting me off a bit. And then we were supposed to wake up later at 2 o'clock at night, and then we were rushed. The real climb, the last 1100 meters, it begins from Camp 3, which really, tests your skills, your endurance and everything. 2 AM we started for the summit push. थोड़ी देर के बाद जब रोप शुरू होते ही पहले एक बड़ी सी क्रेवस है जिसमें ट्रेवर्स है, तो ट्रेवर्स छोटी सी थी, वो हमने की. उसके बाद देन वॉल स्टार्ट हो गई. 40-50 मीटर्स वॉल थी और सर्दी बहुत ज़्यादा थी. जब हमने 70-80 मीटर की वॉल क्लाइंब कर ली, और उसके बाद आई रियलाइज़ कि ये कोलीवार इतना इजी नहीं था जितना हमने सुना था. आई थॉट कि अभी ख़त्म हो गया. फिर 200-300 मीटर्स कोलीवार, एक तो वो चैनल बनता है, तो चैनल की वजह से मुस्तकिल उसमें हवा आ रही है ऊपर से, जो कि बिल्कुल ठंडी हवा है, आपके हाथों में लग रही है. धूप का देयर वाज नो साइन कि कोलीवार में इतनी जल्दी धूप पड़ेगी. फिर वो हवा के साथ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, क्योंकि वो खुश्क हवा थी जिसकी वजह से स्नो बहुत ड्राई हो चुकी थी, बहुत दिन से चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स आपके मुंह पे, फेस पे, इवन स्नो के बड़े चंक्स भी आपको आके लग रहे थे हेलमेट्स वगैरह में. अच्छा, एक छोटा इंसिडेंट इस दरमियान ये हुआ कि एक रॉक पिटॉन जो है ना जवाब दे गया. इसकी ये वजह थी कि मेजर वजह, तो 6 लोग एक ही रॉक एंकर के अंदर आ गए. तो मैंने काफ़ी उनको आवाज़ें दी कि चेंज करें, लेकिन जो टॉप मेंबर था उसको थोड़ी सी एग्जॉशन हो चुकी थी, तो वो उस प्रोसेस में स्लो हो गया. उस टाइम तक हम ऊपर पहुंच गए, तो उसी टाइम पे फिर वो एंकर जो है ना निकल गया और हम कोई 6-7 मीटर नीचे स्लाइड करते हुए चले गए. Those 3-4 seconds of slipping down the anchor, at least 15-20 meters down, or it felt like it's over. And then it took us a lot of time to fix that anchor. Another half an hour wasted over there. उस फॉल से एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी आप बैरियर आ जाता है, तो आपकी एनर्जी भी एकदम बहुत ज़्यादा लगती है, बिकॉज यू फॉल डाउन, तो यू ट्राई योर हार्ट के जी क्रैम्पन फंसे, सेल्फ अरेस्ट टू एवरीथिंग. एंड वी वर वेरी लकी कि मेरे क्रैम्पन्स जो हैं वो यूनुस को नहीं लगे बिल्कुल, बिकॉज व्हेन आई सॉ एट द बैक माय क्रैम्पन्स वर जस्ट टचिंग यूनुस के जो है फॉरहेड को टच कर रहा था बिल्कुल. इफ़ यू वुड हैव 2-3 मोर मीटर्स ना, तो वो क्रैम्पन्स बहुत ज़्यादा डैमेज करते. बिलाइन सरबाज खान, इस वक्त सरबाज भाई को हम एंकरिंग कर रहे हैं, वो इसके ऊपर हैं और काफ़ी सक्सेस. इस वक्त हम रॉक सेक्शन तक पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं. We are almost at 7,000 meters now. We just fixed this one pitch here, and the Sarbaz is leading, and he's scouting the route, and then when he calls us, we go follow him. And to be honest, this is really a tough mountain, it's icy, steep. It's so annoying. We don't enjoy it, but of course we love climbing, so we're here. Going to 7,000 meters. Tough day today. We've been climbing at a very slope, very steep gradient. Yeah, it is. And we just made it to the first anchor. It's blue ice, so it's a lot of effort. It's all your points of the ice axe and points of the crampons. It's taken a lot of time, but still we made it up here, and we are waiting for Subhas. Cheers.
कोई 11 बजे का टाइम था. सरबाज कॉल्ड ऑन द वायरलेस टू द हसन कि जी आप यू आर अनेबल, यू आर फार बिहाइंड अस एंड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग विंड कमिंग, देयर माइट बी अ स्नो ब्लिजर्ड एंड यू वोंट बी एबल टू मेक इट टू द टॉप. तो आई वॉज लाइक प्रीटी मच डिसअपॉइंटेड एंड आई वॉज फ्यूरियस एक्चुअली कि यार 11 बजे, मतलब मैं रात के 2 बजे निकले हो तो 11 बजे कौन सा टाइम है यार, मतलब टर्न अराउंड का. एनीवेज आई केप्ट पुशिंग, आई स्ट्रेट अवे रिफ्यूज्ड सरबाज, आई केप्ट पुशिंग and it went well till the time that we had a severe, the snow was coming, the rocks were falling behind us, and then there was a severe wind, we couldn't see anything at all. Then that was the time that we had to stop. 11:30-12 बजे मैंने कहा कि आप लोग नहीं पहुंच रहे हैं, आप लोग देखें अपना पेस को, अगर आप कर सकते हैं तो आप 3 बजे तक भी, आप 3:30 बजे तक भी वो कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो विंड का जो स्पीड था वो डबल होना था. 1 o'clock के करीब आबिद और सरबाज खान मुझे कोलेवार से निकलते हुए लास्ट पोर्शन में नज़र आए हैं ना, और बीच में सरबाज खान ने हाई एल्टीट्यूड गाइड को बोला भी कि आप मेरे करीब ज़्यादा ना रहो, आप डॉक्टर के करीब रहो, तो आप एक साथ आइएगा. तो जब 1:30 थे 7400 तक मैं पहुंचा हूं, उधर आरिफ बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि आगे जाते हैं, तो ही अबंडन्ड मी, उसने कहा मैं नहीं जा सकता. मैंने उसको कहा कि लेट्स आप हिम्मत कर लेते हैं, आगे जाते हैं, लेकिन उसने कहा कि मैं नीचे वापस जा रहा हूँ. 7300 से मैं काफ़ी आगे निकला, तो 7500 पे पहुंच के मैंने उसका इंतज़ार किया कोई 2.5 से 3 घंटे उधर बैठ के. तो वहाँ पे जब नवीद पहुंच गया तो मैंने उसके साथ डिस्कस किया कि हमारा टाइम जो है वो लेट हो गया, क्योंकि सरबाज भाई ने हमें ये कहा था कि 2:30 बजे के बाद फिर ऊपर कोई नहीं आएगा. वो कह रहा था कि नहीं मैंने ऊपर जाना है, मैंने ऊपर जाना है, सरबाज लोग ऊपर है. तो वहाँ पे मैंने एक इस तरह के रोल अदा किया कि मैं ख़ुद वापस आना पड़ा मुझे. आई वेंट टू 7500 और फिर आगे कोलेवार का जो लास्ट पोर्शन है वो रॉक की है, उधर रोप थी, मैं उस पे गया. मैंने एक डिसीजन लिया उस टाइम के यार आगे जाके कुछ पता नहीं चलता कि अगर कोई रॉक मुझे हिट करे तो ना आगे वाले को पता है कि मैं किधर हूँ, ना नीचे वाले को पता है. तो 7500 से मैंने फिर I was okay. I had energy. I was feeling good, but so बस उसके बाद I'm sorry. बस फिर ऑब्वियसली आई हैव टू रेपल डाउन. डॉक्टर नवीद हमारे पीछे ही थे, लेकिन उसका पेस भी थोड़ा स्लो होता गया क्योंकि हाइट का वो था, और आरिफ डॉक्टर साहब को भी कह चुका था कि डॉक्टर साहब अगर हम जाते हैं तो हम सबमिट तो करेंगे, लेकिन कोई मसला बन सकता है लेट होने की वजह से और डार्क की वजह से. तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा डिसीजन था. Here we are on Tirishmir at 5650. So 55. Sorry, I've lost my mind. How 560 me too. Yeah, 7560. 140 meters more to go. Yes. We stopped here to take some rest, and now we go.
We climb 140 meters more and we will be on the summit of Tirishmir. Inshallah. But when we were there, it was really a sense of accomplishment, gratitude. And I was so humbled to be there. It was a different feeling, completely different feeling, because after all this tough climbing through the couloir and all the night, accomplished, really, really accomplished, जब हम लोगों ने समिट की तकरीबन 3 बजे 19 तारीख को, फीलिंग्स तो आप कह सकते हैं कि जब आप कोई भी पीक क्लाइंब करते हैं उस पे आपको उसके पीछे एक बहुत बड़ा एफर्ट होता है आपका, वो सिर्फ एक्सपीडिशन के दौरान का नहीं बल्कि उसके पीछे का भी। जो मेरे 8000 के 5-6 पीक्स है उनसे मुझे टफ टाइम दिया इसने, और जिस तरह का ब्लू आइस और जिस तरह का स्लोप था वहाँ पे क्लाइंब करना काफ़ी मुश्किल था। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब ऊपर वाला आपका साथ देता है और आपके साथ आपका मेन पावर, आपका गाइड्स, आपका पूरी टीम आपको हौसला देती है, तो फिर शुक्र है कि हमने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में टॉप कर ली और अपना पाकिस्तान का फ्लैग रेज़ की। ग्रेट न्यूज़, जो भी है सारे खैरियती से वापस नीचे आ जाए तो इंशाल्लाह ये हमारे सब पूरी टीम की कामयाबी है। एक ने किया, 2 ने किया, ये पूरा टीम की कामयाबी है। बहुत बहुत मुबारक आप सबको। पहला पहाड़ जिसने मुझे रुलाया है ना, पहला पहाड़ जिसने अन्यू जो अपना कह रहा था सरबाज की बहुत मुश्किल है। मैंने सारी स्टोरी सुन ली आराम से। Finally, everything is done now. I know that. स्टोरी तो सुन ली है ना। You just to listen to stories. The doctors are happy. I'm sure. Easy mountains. Government मैंने ऊपर पैसा लगाया, I didn't deliver. And the person given to you, the expert person, he is not helping you. He is going down. Everybody is going down. So I am a man. I'm not that much strong person. You need a mental reinforcement. I said to my partner, "Come on, we can do it." But he was not. मैं चुप से बैठा हूँ कि चलो ठीक है, कल बैठेंगे साथ में बात करेंगे, ठीक है ना। ये तो सबको अफसोस होता है। मैं 7 से 5 से वापस होती हूँ, मुझे अफसोस नहीं है। हाँ, सबको अफसोस है, हमें भी है। बात ये कि फिर बात ज़्यादा नहीं करो ना। So I am not blaming anybody. I am blaming myself. I should have moved, but I took the decision. Now I am बस 200 मीटर आप बाज़म नहीं होगे। हसम नहीं, मैं सो नहीं सकता। मैंने आवाज़ आई थी कहीं से ना। डॉक्टर भी सही आ रहा था। ये तो धूप पड़ गया ना, उसके बाद
मना तो नहीं किया था ना? हाँ ना, मैंने हसन को ये कहा है कि मतलब मैं जहाँ तक जा सकता हूँ मैं चला जाऊंगा। ठीक है, वापसी पे मुझे इस बात की एश्योरेंस है कि आप और आबिद आ तो रहे हो ना, मतलब रास्ता तो यही है। आपको मैंने पहले कहा कि सर वापस हो जाओ, आप नहीं पहुंच सकते। अगर हाँ ये तो मैंने कहा, अभी तक मैं आपका फेवर करता हूँ, आया हूँ अपना डॉक्टर साहब, मैं शुरू से आपका फेवर नहीं एक सेकंड ना, आपकी बात खड़े होकर मैं बात करूंगा। डॉक्टर साहब का आपसे नहीं अभी अभी जरूरी बात तो नहीं ना, अभी तो मैं नहीं आया हूँ। अच्छा देखो नहीं एक सेकंड, सबके अपने अपने कंसर्न है। डॉक्टर साहब अपना बोलने दो अपने दो, लेकिन लड़ना नहीं है ना, बिल्कुल आपके अपने कंसर्न है। अच्छा एक बात मेरे लिए दो इम्पोर्टेंट बातें थी, ठीक है। एक तो मतलब अल्लाह का लाख शुक्र है, वी हैड अ सक्सेसफुल समिट एक्सपीडिशन, ठीक है, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। तो ये हम सब के लिए, ऑल द टीम मेंबर्स, थैंक्स टू यू, ठीक है। मैंने आपकी शुक्रिया, आबिद थैंक्स टू यू, ठीक है। वी हैड अ सक्सेसफुल, बिल्कुल आप दोनों यहाँ पे आए, आपने वी हैड अ सक्सेसफुल समिट एंड वी विल पोर्ट्रे इट लाइक दैट, ठीक है। नाउ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों ने सबमिट किया, आप मुझे ये बताओ, और ये सच बताना, ठीक है, झूठ ना बताना, मुझे ये सच बताओ कि मतलब हाउ डिफिकल्ट इट वाज, मतलब एज अ माउंटेन। ये पहाड़ सर, दिस इज नॉट फॉर बिगिनर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट इवन फॉर आई मीन गुड क्लाइंबर्स, जब तक वो वेरी गुड ना हो सर। यू गॉट टू बी रियली स्ट्रांग एंड रियली skillful and mentally physically strong to climb this mountain. This is not no joke sir.